عمران خان اسمارٹ جنگل کے افتتاح کے بعد تقریب سے خطاب کر رہے ہیں، آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ کو اور میں خاص طور پہ عمران امین آپ کو آج میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ ہمارا ایک پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ، ہم اس راستے کے اوپر نکلے ہوئے ہیں، وہ ہم کام کرنے جا رہے ہیں جو کہ انشاءاللہ باقی بھی ہمارا ملک میں سیاستدان بھی دیکھیں گے، ایڈمنسٹریٹرز بھی دیکھیں گے کہ یہ ممکن ہے کہ آپ ایک نیا شہر بھی بنا سکتے ہیں، ماڈرن شہر بھی بنا سکتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اپنی انوائرمنٹ، اپنی ماحولیات، اپنے آنے والی نسلوں کے لیے جو شجرکاری کا آج آغاز کیا ہے، آپ ان کو یہ بتا سکتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنی نسلوں کے لیے ایک بہتر پاکستان چھوڑنا ہے تو بہت ضروری ہے کہ ہم ساری قوم مل کے یہ اپنے سے اور اللہ کے سامنے ہم یہ عہد کر لیں کہ ہم نے اپنے ملک کو ہرا کرنا ہے، جو اللہ نے اتنی زیادہ نعمتیں بخشی ہیں پاکستان کو، ہم نے اس کا شکر ادا کرنا ہے، ان نعمتوں کا دھیان رکھ کے۔ میں جب اس ملک میں پہلی جنریشن بڑا ہوا ہوں تو میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے پاکستان میں جنگلات کو تباہ ہوتے دیکھا، وائلڈ لائف، ہر قسم، پاکستان میں ہر قسم کا جانور تھا۔ آہستہ آہستہ ہماری جیسے جیسے جنگلات گئے ہمارے جانور بھی کم ہو گئے، اور پھر یہ ہم نے، کیونکہ میں لاہور میں بڑا ہوا تو لاہور کی ماحولیات کی تباہی دیکھی۔ لاہور کا میٹھا پانی تھا، سب نلکے سے پانی پیتے تھے، دیکھتے دیکھتے وہ پانی تباہ ہوا، پھر ماحولیات تباہ ہوئی۔ لاہور میں تو یہ اس طرح کی پولوشن کبھی تھی نہیں، لاہور تو سٹی آف گارڈن سمجھا جاتا تھا۔ آہستہ آہستہ یہ حالات دیکھے کہ ہمیں یہ خوف آتا ہے سن کے کہ ہمارے بچے اور ہمارے بوڑھے جو لاہور میں بڑا ہو رہے ہیں، جو پولوشن کی سطح ہے، جو لیولز ہے، وہ اتنے اوپر چلے گئے ہیں کہ بچوں کی بھی جانیں خطرے میں ہیں اور بوڑھوں کی بھی۔ ہر قسم کی بیماری ہے جو جس لیول کی پولوشن پہنچ گئی ہے لاہور میں، اور پھر جو پانی ہے وہ نیچے جا رہا ہے، اور وہ پانی پینے کے علاوہ تو چھوڑو، جو ہم اس راوی کے اندر سیوریج، ساری لاہور کی سیوریج جا رہی ہے، اور وہ سیوریج یہ یاد رکھیں کہ وہ نیچے تک جاتی ہے، سندھ تک۔ سارے لوگوں کو یہ جب راوی جاتا ہے دریائے سندھ میں تو یہ ساری سیوریج نیچے تک جا رہی ہے، اور پھر وہ جو پانی گراؤنڈ واٹر جو کنٹامنیٹ ہو رہا ہے کیونکہ ہم سیوریج کو ٹریٹ نہیں کر رہے۔ تو یہ جو پروجیکٹ ہے راوی کا، یہ صرف لاہور کے مستقبل کے لیے نہیں ہے، یہ پاکستان کے مستقبل کے لیے بہت امپورٹنٹ پروجیکٹ ہے، اور یہ ہمیں پہلے دن سے پتا تھا کہ یہ مشکل ہے۔ اگر مشکل نہ ہوتا تو جنرل مشرف کے دور میں بن جاتا، پلان تو تب ہوا تھا یہ، پھر اس کے بعد پی ایم ایل این، پنجاب سپیڈ شہباز شریف، اس نے بنا لینا تھا، لیکن وہ نہیں بنا سکا۔ لیکن اب یہ جو گورنمنٹ آئی ہے آپ کی عثمان بازار، یہ اس لیے بنائے گی کیونکہ اتنے بڑے پروجیکٹ صرف تب کامیاب ہوتے ہیں جب ایک انسان ارادہ کر لیتا ہے کہ ہم کشتیاں جلا کے جائیں گے یہاں، یعنی واپسی کوئی نہیں ہے، جو بھی ہو جائے ہم یہ پروجیکٹ کو پورا کریں گے۔ اور مجھے پتا ہے یہ ایک سال کے اندر ہمیں کتنے مسئلے آئے ہیں، اس میں ہر قسم کے چیلنجز آئے ہیں، اور
लोगों ने स्टे ऑर्डर ले लिए, डिले किया प्रोजेक्ट को, लेकिन इंशाअल्लाह जो हमारा आज़म था उसकी वजह से आज हम उधर हैं कि इंशाअल्लाह अब हम तकरीबन सारी रुकावटें दूर कर बैठे हैं, और भी आएंगी सामने। लेकिन जो मुश्किलात थी शुरू में, असल में प्रोजेक्ट का जो शुरू करना वो सबसे मुश्किल होता है। असल में प्रोजेक्ट फेल शुरू में होते हैं। एक दफ़ा प्रोजेक्ट, इतने बड़े प्रोजेक्ट का जब मोमेंटम बन जाता है फिर उसको कोई नहीं रोक सकता। तो आज जो मुझे खुशी हुई कि एक नई चीज़ अब आई है। एक तो हमने स्मार्ट लॉकडाउन लगाए थे, वो सारी दुनिया बड़ी हैरान थी कि स्मार्ट लॉकडाउन क्या होता है। मजाक भी उड़ा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जो कोरोना को पाकिस्तान ने जिस तरह डील किया, दुनिया में मिसाल दी जाती है पाकिस्तान की। टॉप 3 मुल्क हैं, स्मार्ट लॉकडाउन का इस्तेमाल किया। अब ये स्मार्ट फॉरेस्ट बन रहा है, तो स्मार्ट फॉरेस्ट का मुझे आज बड़ी खुशी हुई है ब्रीफिंग लेके स्मार्ट फॉरेस्ट पे, कि अब हमने हवावे के साथ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। और टेक्नोलॉजी का किस तरह इस्तेमाल कि हम तकरीबन हर पौधे का उसकी ग्रोथ देख सकेंगे। ये है टेक्नोलॉजी, ये जो दुनिया आगे बढ़ रही है, इसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है ये कि हम अब ये देख सकेंगे पौधा किस रेट पे बढ़ रहा है। जो सबसे मुझे खुशी ये है कि ये जो मशीनें दरख्त काटने की, जो ये 100 मशीन्स होती हैं, वो अब ये जो नई टेक्नोलॉजी है एकदम सेंसर से पता चल जाएगा कि यहाँ पौधा, ये दरख्त काटा जा रहा है, और फिर दरख्त की पूरी ऊपर से पता चल जाएगा कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई दरख्त उग नहीं रहा है, या तो एक्ट करेंगे पहले। ये बड़ी माशाल्लाह साइंस का ये बहुत पॉजिटिव फ़ायदा है। और इंशाल्लाह ये जो स्मार्ट फॉरेस्ट है, ये फिर हम सारे पाकिस्तान में इसकी मिसाल देंगे। हमारे बड़ी अफसोस से कहना पड़ता है कि बड़े हमारे दरख्तों की तबाही की गई। आप ये सोचें कि 2013 तक सारे पाकिस्तान की तारीख में सिर्फ 64 करोड़ दरख्त उगाए गए हैं, और सिर्फ पख्तूनख्वा में हमने 2013 से लेके 2018 तक 1 अरब दरख्त उगाए। 5 सालों में 1 अरब दरख्त उगाए। हमारी सारी तारीख में 60 सालों में 64 करोड़ दरख्त उगाए गए। और इंशाअल्लाह जो अब हम टारगेट, जिसमें यह भी शामिल है, 10 अरब दरख्त हमने लगाने हैं। ये समझ जाएं कि 10 अरब दरख्त का जो टारगेट है हमारा, जब हम पहुंचेंगे पाकिस्तान बदल जाएगा, मौसम भी बदल जाएगा। जब आप दरख्त उगाते हैं उससे मौसम के ऊपर भी इंपैक्ट पड़ता है, दरख्त काटते हैं उसका मौसम पे इंपैक्ट पड़ता है। हमारी 3 बहुत बड़े मसले हैं। हमारा सबसे बड़ा मसला ये है पानी का। ये हमारा यानी दुनिया में पानी का मसला आने वाला है। उसके लिए दरख्त उगाने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो ग्लोबल वार्मिंग है वो पाकिस्तान को ज़्यादा इंपैक्ट कर रही है। हम दुनिया में उन 10 मुल्कों में से हैं जो सबसे ज़्यादा मुतासर होंगे ग्लोबल वार्मिंग से। हमारे दरियाओं के अंदर पानी कम होता जाएगा, क्योंकि हमारे जो ग्लेशियर्स हैं वो तेज़ी से मेल्ट हो रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ये जो हमारी टारगेट है 10 अरब दरख्त का, पहले तो इसको इंपैक्ट करेगा। फिर शहरों में पोल्यूशन है, जो मैंने शुरू में आपको कहा। फिर ये जो हम अनट्रीटेड पानी, सीवरेज का पानी अपने दरियाओं में डाल रहे हैं, इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट है। ग्राउंड वाटर पे इंपैक्ट है, इससे लोगों की सेहतों पे फर्क पड़ेगा। तो ये जो प्रोजेक्ट है लाहौर का, ये सारी चीजें एड्रेस करता है। सबसे पहले ये एक पहली दफा प्लान करके यहां 1 करोड़ दरख्त लगाए जाएंगे। 1 करोड़ दरख्त, आप सोचें कि पूरा जंगल बन जाएगा। उससे फिर लाहौर के शहरियों के लिए, टूरिज्म के लिए, यानी जाने के लिए, बच्चों के साथ लोग बाहर निकलना चाहते हैं छुट्टी के दिन, कोई जगह नहीं है लाहौर में। तो ये इंशाल्लाह एक बहुत बड़ा टूरिज्म के लिए भी लाहौर से लोग आएंगे इधर, तो ये पूरा एक जंगल भी बन जाएगा और बड़ी प्लान किस्म का जंगल होगा टूरिज्म के लिए। फिर 3 बैराजेस बनेंगे रावी के ऊपर, पानी को रोकेंगे। जब पानी को रोकेंगे तो लाहौर का जो ग्राउंड वाटर नीचे जा रहा है वो फिर ऊपर आना शुरू हो जाएगा। और फिर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगेंगे,
जो कि लाहौर का सूरज का पानी ट्रीट करके दरिया में डालेंगे ताकि नीचे तक हम लोगों की सेहतों को खतरे में ना डालें। तो ये एक पहली दफा एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बन गया है। और फिर जो एक और भी चीज कि इससे जो नौकरियां मिलेंगी लोगों को, 10 लाख नौकरियां इससे मिलेंगी। और फिर हमने जो एस्टिमेट किया कि $40 अरब इकोनॉमी में आएगा इसकी वजह से, ये शहर बनने की वजह से। $40 अरब का मतलब कि तकरीबन जितना पाकिस्तान का सालाना बजट है 22 करोड़ लोगों का, वो जनरेट करेगा ये शहर। तो इंशाअल्लाह इसका सारा इंपैक्ट पड़ेगा रोजगार के ऊपर, इसका इंपैक्ट पड़ेगा हमारी इंडस्ट्री पे। कंस्ट्रक्शन जब शुरू होगी तो 30 और इंडस्ट्रियां चलनी शुरू हो जाएंगी और इससे फिर हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी, हमारा रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ेगा, जो कि हमने इतने कर्जे देने हैं। तो ये बड़ी चीजें पाकिस्तान के मसले ये प्रोजेक्ट एड्रेस करेगा। मैं फिर से आखिर में कहूंगा चीफ मिनिस्टर साहब कि आपको मुश्किलों का सामना पड़ेगा। आपकी टीम, सारी आपकी एडमिनिस्ट्रेशन, सबको तैयार होना चाहिए मुश्किलों के लिए। सबको हर तरह की जो भी रुकावट हो उसको हटाने के लिए आपको तैयार रहना चाहिए और अज़म करना चाहिए कि कोई चीज इस प्रोजेक्ट को अब हम रोकने नहीं देंगे। शुक्रिया।